Welcome to the another empowering episode of Nari Prenyo. Today, we have the privilege of speaking with a remarkable woman whose journey embodies with resilience, creativity, and determination. She is a multi talented force in the field of content creation, podcast production, and personal storying, and recreate the styling as well. She has worked with some of the biggest names in the country, producing popular podcasts for celebrities like Ananya Pandey, Karishma Tanna, Lisa Mangaldas, and Sejal Kumar. Her expertise in the podcast production has helped shape some of the most impactful conversation in the digital space. But her story doesn't stop here, using her personal experiences to inspire and empower others. She has courageously turned life setbacks like job loss into the stepping stone, creating opportunity for herself. Her ability to juggle the role of a creator, single parent, and a mentor for one of the every woman, which makes her an inspiration to anyone striving to rebuild and thrive. Today, we will dive into her journey, exploring her professional milestones, personal victories, and the lessons she learned along the way. Let's welcome the incredibly inspiring Akansha to the Nari Preneur. Welcome. थैंक यू सो मच इट वाज सो वंडरफुल कभी कभी सुबह सुबह की शुरुआत में ना अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है स्पेशली अगर आप कभी थोड़ा डाउट में हो रहे हो ना देन यू रियलाइज कि ओ पीपल सी योर पोटेंशियल थैंक यू सो मच Thank you so much, Akansha, for joining in the podcast series of Nari Preneur. So let's start and dive into this journey. And even we also want to know about your life journey. So can you please share a little bit about your journey, being as a podcast production, as a single mother, and what inspired you to start to telling life story and through recreating looks? We all are eager to know about that, Akansha. Okay, these are a lot of questions. I'll try to be brief. Yes. I was born in a very happy and beautiful family. My parents are very loving, very caring, very giving, and both are, working parents. And I saw them कि हमेशा आगे देते रहिए तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा मैंने उनको बहुत मेहनत करते हुए देखा तो वही चीज मेरे अंदर इम्बाइब हो गई जी. I started my career as a radio jockey. I was a radio jockey for about like 13 years. Then I briefly shifted to TV. And again, I got back to radio. एंड इस बीच में पर्सनल लाइफ में मेरी शादी भी हुई मेरी बेटी भी हुई फिर उसके बाद एट अराउंड 31 मेरा डिवोर्स भी हुआ हाँ. इन सब के बीच में एक मौका ऐसा आया जब मुझे लगा कि आज अभी इसी पल में मुझे ना मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल या फिर एक कंटेंट क्रिएशन चैनल शुरू करना है और तब मैंने शुरुआत की रिक्रिएट विद मी की क्योंकि जैसे मैंने मेरी लाइफ को रिक्रिएट किया वैसे ही मैंने सोचा कि अब मैं एक ये चैनल बनाती हूँ और देखिए क्या होता है ना शुरुआत में बड़ी झिझक होती है ये बोलने में भी कि मैं डिवोर्स्ड हूँ मैं एक सिंगल मदर Yes. हूँ हाँ. मैंने कपड़ों का सहारा लिया तो मैं Hmm. कपड़ों के थ्रू अपनी स्टोरीज शेयर करती थी एंड वन ऑफ माय वीडियोस ऑन यूट्यूब वेंट वायरल दैट वाज एन एयरपोर्ट लुक एंड बाय द वे वो इसी साड़ी में वो लुक था Oh, एंड दैट great. वेंट वायरल एंड आई गॉट अबाउट लाइक 5 मिलियन व्यूज ऑन दैट उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट गई तो somebody किसी ने मुझे पहचाना भी कि आप वही है ना जिसने वो एयरपोर्ट लुक डाला था एंड Yes. दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि ओ इस चैनल को शुरू करके मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है तो ये मेरी जर्नी रही है दो ही मंत्रा मेरे रहे हैं कि मेहनत करो और हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड द जॉब ऑफ अ पॉडकास्ट प्रोड्यूसर आल्सो एग्जैक्टली एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड वो सभी के लिए इंस्पायर करता है बिकॉज हमारी लाइफ में हर किसी को एक सेल्फ डाउट होता है. सो वो सेल्फ डाउट तभी आएगा जब आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, स्किल को इनहेंस करोगे. सो स्लोली एंड करेक्ट ग्रेजुअली हमारा ये आता ही है. सो आकांक्षा, जैसे आपने बताया कि जो रिक्रिएटिंग लुक्स विच ऑल्सो इंस्पायर इन सच एन आर्ट फॉर्म, बिकॉज आप जिस तरीके से अपने लुक्स को रिक्रिएट करते हैं तो देर इज एन एक्सप्रेशन एंड देर इज अ मैसेज बिहाइंड दिस.
So what kind of message do you aim to convey to lot of people? Like आप there is a social media as a platform. So आप किस तरीके से अपने message को aim करते हो? Like could you तो please? दो मैसेज में हमेशा अपने लुक्स के साथ हाँ, रिक्रिएशंस के साथ कन्वे करना चाहती हूँ। पहला मैसेज तो ये कि हमारी अलमारी में ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, बस उन्हें नए तरीके से रिक्रिएट कैसे किया जा सके। और एक सेइंग है मेरी दैट एवरीथिंग न्यू विल बिकम ओल्ड, बट yes, एवरीथिंग ओल्ड विल ऑल्सो बिकम न्यू। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। correct. दूसरी आप ये कह सकते हैं कि कपड़ों को लेकर जो मेरा लगाव है, दैट इज ऑल ट्रिब्यूट टू माय मदर। मैंने उन्हीं से बचपन से सीखा है कपड़े स्टिच कैसे करते हैं, मिक्स एंड मैच कैसे करते हैं, किस कपड़े को क्या बोलते हैं, ये मलमल है, ये कॉटन है, ये Yes, जॉर्जेट है, ये क्रेप है, एंड ऑल दिस। हाँ, सो दैट इज वाई आई ऑलवेज फील कि ये जो कुछ भी है ये मेरी मदर को डेडिकेटेड है, और वहीं से मैंने सीखा है। तो दो amazing. चीजें अपनी जिंदगी में याद रखिए कि कपड़े बहुत सारे हैं, और आप जो है आप कपड़ों को पहन रहे हैं, कपड़े आपको नहीं पहन रहे हैं। Perfectly. Very तो good. दैट्स इट्स ट्रूली अमेजिंग एंड जिस तरीके से मैंने भी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी एंड यू क्रिएट अ लॉट ऑफ लुक विद इन जो आपकी वार्डरोब में जो कपड़े हैं आप उसको रिक्रिएट कैसे कर रहे हो सो देर इज अनदर लाइफ एंड विच इज अ वेरी फ्रेश परस्पेक्टिव एंड राइटली सेड इट्स अ परसेप्शन एंड इट्स अ परस्पेक्टिव कि आप अपने कपड़ों को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं वेरी वेल सेड आकांक्षा एंड जैसे आप रिक्रिएट करते हैं तो फैशन there is a two kinds of notion fashion and styling so आप उसमें किस तरीके से अपने रोल को प्ले करते हैं and अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बिकॉज समटाइम्स वो चैलेंजेस भी आता है कि हम कैसे रिक्रिएट करें बिकॉज when you are into this journey because as you tribute to your mother स्पेसिफिक क्लोथिंग का रिक्रिएशन करना सो जो इमोशंस के साथ अपनी स्टोरी को आप कैसे आप लोगों को बताते हैं along with देखिए फैशन भी रहे और स्टाइलिंग भी रहे साथ में देखिए, आपने मेरे सारे वीडियोस देखे ही हैं, तो यस उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा कि इमोशन हमेशा मैं ऐड करती हूँ उस स्टोरी को रेलेवेंट बना के, उस ओके उसमें कोई एक ऐसा टॉपिक ऐड करके जिससे मैक्सिमम फीमेल्स और काफी हद तक मेल्स भी अगर उसे रिलेट करते हैं तो नथिंग लाइक इट। करेक्ट दूसरा, अगर फैशन और स्टाइल की हम बात करते हैं तो हमेशा मेरी एक अप्रोच रहती है कि कपड़ा कितना भी फैशनेबल हो, हम्म सस्ता हो या महंगा हो, मैं उसमें हमेशा एक हीरो पीस ढूंढती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये साड़ी पहननी है तो मैं इसमें एक हीरो पीस ढूंढूंगी कि इस साड़ी में सिर्फ यही चीज हाईलाइट होनी चाहिए, बाकी सब कुछ सटल होना चाहिए। करेक्ट उसको मैं सोच के फिर उसको डिजाइन करती हूँ और फिर उसके बाद अपना लुक रिक्रिएट करती हूँ, और अभी तक ये जो मंत्र है मेरे लिए बहुत सही काम कर रहा है। ग्रेट 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 एंड चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग चलते हैं आप ये बताइए कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी फॉर ऑल द वुमेन जो आपको देख रही हैं एंड कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल से भी अपने चैलेंज से भी अपने आप को फेस कर रही हैं सो एज एन इंडिविजुअल वुमेन हर एक वुमेन की क्या वॉइस एंड टू व्हाट द आइडेंटिटी आफ्टर फेसिंग ऑल द चैलेंजेस तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी वुमेन को देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि चैलेंजेस की अगर बात आती है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन हु आर सिंगल मदर्स और हु हैव गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रेजेडी और ट्रॉमा इन देयर लाइफ। सिर्फ यस उन्हीं के चैलेंजेस होते हैं। देयर आर वुमेन हु आर वेरी हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ आल्सो, बट डे टू डे चैलेंजेस उनके भी होते हैं। करेक्ट तो देखिए, मैरिड होना भी चैलेंजिंग है और डिवोर्स होना भी चैलेंजिंग है। इसमें आपको आपका चैलेंज चुनना होता है कि आपको किसके साथ जाना है। ठीक है। यस दूसरी चीज जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं तो उसको खुद आपको खोजना होगा। कैसे खोजना होगा? एक बार बैठिए और सोचिए कि आपकी 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। उन तीनों पॉइंट्स को लिखिए। उसके बाद लिखने के बाद आपका एक एक्शन प्लान बनाइए कि इन तीनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए क्या ऐसा एक्शन प्लान हो सकता है जो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करे। देखिए, सिर्फ ये बोल देना कि मैं यूनिक हूं, मैं बिल्कुल हम्म अलग हूं, इससे कुछ हम्म नहीं होता है। हम्म काम यूनिक होना चाहिए, आपकी अप्रोच यूनिक होनी चाहिए। बाकी हम तो सभी एक जैसे ही हैं। भगवान ने इसलिए तो सबको सेम सेम बनाया है ना। एक ही दिमाग, एक नाक, 2 आंखें, सबको ऐसे इसलिए दिए हैं कि आपके कर्म जो हैं वो ही आपको यूनिक बनाएंगे, और उन्हें तो आप ही को करना पड़ेगा। बहुत सही बात बोली आपने आकांक्षा एंड यूनिकनेस आपको खुद से ढूंढनी है और उसमें एक्शन प्लान और रोड मैप बनाना है देन आपकी करेक्ट। जर्नी फुलफिल हो पाएगी बहुत सही सो आकांक्षा आपको ऑडियंस से विमेन ऑडियंस से और लॉट ऑफ ऑडियंस से आपको बहुत प्यार मिलता है सो जो अप्रिसिएशन और जो प्यार मिलता है
उसको वो आपके लिए क्या रोल प्ले करता है? लाइक व्हाट मोटिवेट्स यू? Because you create a lot of content, you have create a lot of expression through your recreating styling of your looks. So आपको ऐसा क्या मोटिवेट करता है आपकी लाइफ जर्नी में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने ये चैनल की शुरुआत की थी, तो जी। सिर्फ़ इसलिए नहीं की थी कि मुझे लोगों का एप्रिसिएशन मिले या मैं अपनी जर्नी लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं जी। हमेशा से कंटेंट क्रिएशन में रही हूँ, एज़ अ रेडियो जॉकी, एज़ अ टीवी एंकर। तो आप एक तरीके से सोचिए, दिस इज़ माय स्ट्रेंथ। तो मैंने यस। अभी आपको क्या, मेरी स्ट्रेंथ ही कंटेंट है। तो मेरा यस। रोड मैप क्या था कि क्रिएटिंग कंटेंट, ओके? अभी रिक्रिएट विद मी के साथ-साथ मैं एक और अपना चैनल डेवलप कर रही हूँ, रिक्रिएटिंग सोच स्टोरीज़। हम्म। जिसमें भी मैं कुछ इसी तरह के पर्सपेक्टिव के साथ स्टोरीज और म्यूजिकल स्टोरीज क्रिएट कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा रोड मैप, ओके? यस। जितनी भी फीमेल्स की या इनफैक्ट एट टाइम्स मेल्स की भी जो मेरे को अप्रिसिएशन मिलती है, वो एक तरह से इसका पर्क हो गया। और हर बार जब तारीफ मिलती है, सभी को अच्छा लगता है। मतलब किसको, कौन होगा जिसको तारीफ सुनना या तारीफ पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा? एंड कभी-कभी मैं बहुत ओवरवेल्म्ड भी फील करती हूँ कि मतलब इतनी तारीफ, इतना तो मैंने ऐसा कोई काम किया भी नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली। फिर भी जब तारीफ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जी, बहुत बढ़िया। एंड आपके हर एक आंसर से मुझे भी कहीं ना कहीं मेरा आंसर भी मिल गया कि कभी कभी जब कभी सेल्फ डाउट होगा ना, तो आकांक्षा का मैं एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट जरूर देख लूंगी मैं, सो दैट कि मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीजों के साथ अपलिफ्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच करेक्ट। आकांक्षा, थैंक यू सो मच। एंड चलिए, मैं आपसे कुछ एक ऐसा राउंड है, अभी ये एंड ऑफ द राउंड सेशन का राउंड हो रहा है, मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगी, दिस और दैट। सो आप अपना जो आपका इम्प्रॉम्प्टू होगा, आप प्लीज आप मुझे हम हमारे साथ शेयर करिएगा। सो लेट्स श्योर। स्टार्ट दिस थिंग, कंटेंट क्रिएशन और पॉडकास्ट प्रोडक्शन। इट कैन नॉट बी दिस और दैट। इट्स वन एंड द सेम थिंग। यस। पॉडकास्ट इज कंटेंट। यस। सो बोथ, इन दिस केस बोथ। ओके। Or let me just reframe it. यस। Content creation pacifies my soul, and podcast creation pays my bills. Both are required. यस। अमेजिंग, अमेजिंग। सेलिब्रिटी पॉडकास्ट और पर्सनल स्टोरी टेलिंग। Personal storytelling, Amazing. Solo episodes or guest interviews? solo episode, they are very difficult Yes, because that's when you are creating the content. exactly. Exactly. Work from home or on the go hustle? I wouldn't mind a mix of both. Yes. Planning the future or living in the moment? Living in the moment while planning the future. Perfect. Personal growth or personal transformation? It's one and the same thing. As long as you are growing, you are transforming. Exactly. Career challenge or personal challenge? Uh, See, I've already had a lot of personal challenges. And I've already had a lot of career challenges also. So, my mantra is Bhagwan, please stop giving me challenges and please pour some happiness in my life. Exactly. Inspirational podcast or entertaining podcast? Music. Yes. Even I saw one of your story last night, जहां पर आप अपना डांस आप अपना रिहर्स कर रहे थे आप एक, सो मैंने आपकी Correct. स्टोरी देखी थी मैंने। So whenever I consume podcast, that is from the point of view, I consume it from an expert point of view, as in the from podcast producer point of view. I never consume it because I want to take information out of it. Yes. So that's why most of the time I listen to music, and when I'm working, then I'm actually consuming podcast. Perfect. So one and last question I would like to ask, describe one word about yourself. Spontaneity. Great, amazing, Akansha. And that was the a great conversation with you, Akansha. And it really helped me and it really helped others, people to inspire from your journey as well. So it's a great honor to be there with you. And आपने मेरा invite accept किया, and I'm so happy for that. Sometimes what happen, Akansha, कि कुछ लोगों को invite देते हैं, it's a normal, it's a work,
बट व्हेन यू एक्सेप्ट माई इनविटेशन, तो मुझे इतना अंदर से अच्छा लगा कि मतलब मैंने आपके सारे मतलब यूट्यूब्स देख लिए वन गो में। क्या है, आप जयपुर से हैं, आप बैंगलोर में शिफ्ट हुए एंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ थिंग जो कि मेरी और आपकी कहीं ना कहीं वो वाइब मैच करती है। बिकॉज मेरी मदर से मैंने इंग्रेन्ड किया है स्टाइलिंग को रिक्रिएट करना, एंड वो चीज हमें एफर्टलेसली लगती है, सामने वाले को वो एफर्ट लगता है, बट देर इज सम मैजिक फ्रॉम आवर मदर। सो वो हमारे करेक्ट। अंदर आ गया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड इट्स ऑलवेज लाइकवाइज, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसा आपने बोला कि आपने मुझे इनवाइट भेजा, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कोशिश करके देखिए, यस, किसी को भी अप्रोच करके देखिए। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही तो आएगी। और एग्जैक्टली। अगर हाँ आ जाए, हाँ, सो दैट्स इट। ये यही ऑल मंत्र राइट। है। ये ऑल राइट।